اسلام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے معیار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آئیڈینٹیٹی بنایا ہے، ایک پہچان اور شناخت بنایا ہے، اسلام کے ماننے والے کو بنایا ہے، لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم پہچانے جاؤ، یہ پہچان کے لیے ہے۔ اور کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے معزز، تم میں سب سے مکرم وہ شخص ہے جو اللہ کی خوشنودی حاصل کرے، جو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو مانے اور اس کی باتوں کو اطاعت اور اپنے سر تسلیم خم کر دے۔ میرے دوستو، اب میں بلا کسی تاخیر اس کے بعد ہمارے درمیان ایک ایسے مولانا تشریف فرما ہے جس کا نام حافظ اطہر اشاعتی گنگا پٹی ہے، ان کو میں ان اشعار کے ساتھ دعوت دوں گا کہ سو چاند بھی چمکے تو کیا بات بنے گی، سو چاند بھی چمکے تو کیا بات بنے گی، آپ آ جاؤ تو اس رات کی اوقات بڑھے گی۔ ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يهد الله فلا هادي له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقال الله تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتا ہوں، ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتا ہوں، میں اپنے رہبری کے لیے قرآن رکھتا ہوں. وفاداری ہو وطن سے یہی اسلام سکھاتا ہے، وفاداری ہو وطن سے یہی اسلام سکھاتا ہے. میں اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتا ہوں. صدر محترم اور اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے علماء کرام اور حاضرین مجلس اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، محترم حاضرین، اللہ رب العالمین نے ہم سب کو پیدا فرمایا اور اس روح زمین پر پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اے میرے بندو، اگر تم میری نعمت کو گننا چاہو گے، شمار کرنا چاہو گے تو نہیں گن سکتے ہو، نہیں شمار کر سکتے ہو، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہم سب پر بہت سارے نعمت عطا فرمائے ہیں. ان نعمتوں میں سب سے بہترین نعمت اللہ رب العالمین نے ہم سب کو جو دیے ہیں وہ ایمان کی دولت ہے، وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دولت ہے. محترم دوستو، جب ہم لوگ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو سچے دل سے اقرار کر لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، تو اللہ کے قبضہ میں ہو جاتے ہیں. اللہ رب العالمین جس طریقے سے ہمیں چلائیں گے ہمیں چلنا پڑے گا، اللہ رب العالمین جس طرح کہیں گے ہمیں کرنا پڑے گا. اے لوگو، ہم آزاد نہیں ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں، اللہ کا حکم ہم پر نافذ ہو چکا ہے. میرے محترم بزرگوں، دوستو، ہم جب کلمہ پڑھ لیا، اللہ رب العالمین کی تعلیم کو جب ہم کو جاننا ہے، ہمیں پہچاننا ہے اللہ کیا فرما رہے ہیں، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا تعلیم دی ہے، اس چیز کو ہمیں جاننا ہے. جاننے کے لیے سب سے پہلے ہمیں علم کی ضرورت ہوگی. ان علماء سے ملنا پڑے گا، ان علماء کی صحبت میں رہنا پڑے گا، اور مدارس کا رخ کرنا پڑے گا، مکاتب کا رخ کرنا پڑے گا. اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر سب سے پہلی آیت جو نازل فرمایا وہ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق. وہ ہے تعلیم کے اوپر، وہ ہے پڑھائی کے اوپر، کہ ہمارے معاشرے میں سب سے پہلے دینی تعلیم قائم ہو جائے، ہمارے بچے قرآن کی تعلیم جان لے، قرآن پڑھنے والے ہو جائے. اگر ہم لوگ دینی تعلیم پڑھنے والے بن جائیں گے تو ان علماء کی قدر کرنے والے بن جائیں گے. اے میرے دوستوں اور بھائیوں، آج ہم لوگ ان علماء کو
हकीर समझते हैं। ये उलमा कौन है आपको मालूम है? ये उलमा वो उलमा है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दर्स दे रहे थे, ये वही उलमा है जब नबी पाक अलैहि सलाम अपने ज़माने मुबारक से हदीस मुबारक पढ़ा रहे थे तो सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अलैहि मजमईन ने उस हदीस को सुना। वही हदीस चलते हुए इमाम बुखारी तक पहुंचा, वही हदीस चलते हुए आज देवन के मदारिस में पढ़ाई जाती है। आज यही उलमा देवन के नाम से जाना जाता है। इनकी ज़बान पर अल्लाह की हर वक्त बड़ाई होती है, अल्लाह की बड़ाई, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तस्बीह होती है। आज इन उलमा को हम हक़ारत की नज़र से देखते हैं। ऐ मेरे भाइयों, इन उलमा की कीमत को तुम जानना चाहोगे तो सुनो, इन उलमा की कीमत को जानना चाहोगे तो सुनो। आप लोग पूरे दुनिया के गोशे गोशे में फैल जाओ, दुनिया के कोने कोने में चल जाओ, एक पर्ची ले लो, एक सवाल है, उस सवाल को आप दुनिया के कोने कोने में करो कि दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान कौन है, दुनिया के पावरफुल इंसान कौन है। इस सवाल को लेकर आप दुनिया के मुख्तलिफ जगहों पर पहुंच जाइए। आप ऐसे कस्बे में पहुंच जाइए, किसी डॉक्टर साहब से पूछे, ऐ डॉक्टर साहब दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान कौन है बता दीजिए। डॉक्टर साहब अपने अकल से जवाब देंगे और वो कहेंगे कि दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान डॉक्टर है, इसलिए कि वो लोग के इलाज करते हैं। इसी सवाल को लेकर आप किसी इंजीनियर के पास जाइएगा और उनसे सवाल कीजिएगा, इंजीनियर साहब आप जरा ये बताइए दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान कौन है, तो इंजीनियर साहब अपने अकल से जवाब देंगे। सवाल को जब हम उस नबी पाक अलैहि सलाम के पास पेश करते हैं जो सारे कायनात के सरदार है, जो सारे आलम के सरदार है, जमीन और आसमान के सरदार है, जब हम यहाँ बैठकर नबी पाक अलैहि सलाम से सवाल करते हैं, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे सरदार, ऐ मेरे नबी, ऐ नबी पाक अलैहि सलातु वस्सलाम आप बता दीजिए, आप बता दीजिए दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान कौन है, दुनिया में सबसे पावरफुल इंसान कौन है, तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का जवाब सुनिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ मेरे उम्मती खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह, दुनिया में सबसे पावरफुल इंसान, दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान को सीखे और दूसरों से सिखाए। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, बात तो अल्लाह के नबी की होती है, जुबान अल्लाह के नबी की है, लेकिन बात अल्लाह की होती है। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं कि दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान वो कुरान सीखे और सिखाने वाले हैं। ऐ मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ये वो उलमा है जो आपके सामने बैठे हुए हैं, जिनको फरिश्ते आसमान से उतरते हैं और सलाम करते हैं। ये वो उलमा है जिनके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, ऐ लोगों, तुमको ये उलमा दुनिया में भी काम आएगा, ये उलमा मरते वक्त भी काम आएगा, ये उलमा आखिरत में भी काम आएगा, और ये उलमा जन्नत तक तुम्हें काम आएगा। कैसे? मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, जब हम अपने बच्चे, हमारे यहाँ बच्चे पैदा होते हैं तो कान में आजान देने के लिए किसको बुलाते हैं? कोई पढ़े लिखे आलिम, हाफिज साहब, मौलाना साहब को बुलाते हैं, वो उलमा वहाँ भी काम आए। जब बच्चे 7 साल के हो जाए उनकी तालीम के लिए किसको बुलाते हैं? इन उलमा को बुलाते हैं। जब बच्चे बालिग हो जाए उनके निकाह पढ़ाने के लिए इन्हीं उलमा की खोज करते हैं। जब निकाह हो जाए, जब मर जाए, मरने के बाद जनाजे के लिए किसको बुलाते हैं? इन्हीं उलमा को बुलाते हैं। यहीं तक बात नहीं रहती है, जब कल क़यामत के दिन जन्नत और दोज़ख का फैसला हो जाए, सब लोग जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, दोज़खी दोज़ख में चले जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएंगे, ऐ जन्नत वालों, तुम्हें सब कुछ मिल गया है, कुछ चीज की और जरूरत है। तो कहेंगे जन्नत वाले, ए अल्लाह, तूने सब कुछ तो दे दिया, अब क्या चीज बचा है? लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाएंगे, कुछ तो बाकी है, वो है जाओ अपने इलाके के उलमा से पूछ कर आओ। तो आप दौड़िएगा अपने इलाके के उलमा के पास, आइएगा, कहाँ है उलमा साहब, कहाँ है हमारे मौलाना साहब? मौलाना साहब के पास दौड़िएगा। जन्नत में भी मौलाना साहब, ए मौलाना साहब बताइए क्या चीज बाकी है जन्नत में? सब कुछ तो मिल ही गया है, लेकिन क्या चीज बाकी है? ये उलमा कहेंगे क्या बाकी सिर्फ एक चीज है, वो अल्लाह के दीदार बाकी है। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, इन उलमा से मोहब्बत करो। इन उलमा से जब मुसाफा करोगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके खानदान में उलमा पैदा फरमाएंगे। और मेरे दोस्तों और भाइयों, और आप लोग जो देखते हैं, हम देखते रहते हैं, जब ये उलमा किसी मदारिस के चंदे के लिए जाता है, किसी मदारिस के चंदे के लिए निकलता है, तो लोग हक़ारत से देखते हैं। ऐ लोग मुसलमानों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये उलमा अपने पेट के लिए नहीं जाते हैं, ये उलमा अपने पेट के लिए नहीं जाते हैं। बीवी बच्चों को छोड़कर
कर अपने रोजे की हालत में रमजान मुबारक में भूख की शिद्दत को बर्दाश्त कर कर और ये उलमा इन मदारिस को बचाने के लिए, इन दीन को बचाने के लिए तरह तरह आपके दरवाजे पे जाते हैं और आपके हलाल कमाई को हलाल और करने के लिए आपके पास जाते हैं ताकि मदारिस कायम हो जाए और हम जैसे तालिबे इल्म उस मदरसे में पढ़े और ये उलमा पैदा होकर हमें दीन और दीन की बातें बताए। इसलिए ये उलमा अपने पेट के लिए नहीं जाते हैं बल्कि ये उलमा उन मदारिस को कायम करने के लिए जाते हैं जिन मदारिस से अशरफ अली थानवी पैदा हुए और आप देख रहे हैं स्टेज पर उलमा भरे हुए हैं, उन्हीं मदारिस से फारिग हुए हैं। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, जब भी ये उलमा आपके दरवाजे पे पहुंचे तो आप सोचिएगा ये उलमा अपने लिए नहीं, ये दीन की खिदमत के लिए आए। अगर ये उलमा नहीं रहे तो मदारिस नहीं रहेंगे, मदारिस नहीं रहेंगे तो दीन बाकी नहीं रहेगा। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन जितने भी मुसलमान जो भी लोग हैं, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको उलमा से, तलबा से, हुफ़ाज़ कराम से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए और मरते ज़िंदगी तक इन उलमा से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।